Case number 1, Saira Banu versus Union of India. May it please your lordship, I am Advocate Ishita. I counsel for the petitioner Saira Banu appear before this honorable court. This case concerns the practice of Muslim triple talaq, where a Muslim woman marriage is ended in secret by her husband, merely repeating the word talaq, talaq, talaq. This case is about the practice of instant triple talaq, also called with talaq-e-biddah. My client, a Muslim woman, has been arbitrarily divorced by her husband, Rizwan Ahmad, by just uttering the word talaq, talaq, talaq. She stands before this honorable court seeking justice. The issue before this court is whether triple talaq is constitutional or not. We submit that this practice is unconstitutional as it violates the fundamental right of Muslim women. My argument will show that triple talaq violates Article 14, Article 15, Article 20 of Constitution. It is not an essential part of Islam and goes against the dignity of women. First, violation of Article 14 which stands for right to equality. Triple talaq gives absolute power to husband only, while it has no equal right to instantly ended the marriage. This is clear discrimination against Muslim women. Law must treat men and women equally. Triple talaq breaks the principle of equality. Second, violation of Article 50, no discrimination. Constitution provides discrimination on religion, sex. Triple talaq targets women only, not men. This practice is gender-based and discriminatory, so it must not continue. Third, violation of 21. Right to life and dignity. Right to life means not only survival but also living with dignity. One word talaq treat and destroy a woman's dignity, security, mental peace and future. Such an arbitrary divorce destroys women's dignity, hence it violates Article 21. Husband can say talaq anytime, anywhere, even by phone, WhatsApp, letter, telegram, etc. Wife's whole life becomes uncertain. Such one-sided and arbitrary power cannot be allowed in democratic country. India is a signatory to CEDAW, which stands for Convention on Elimination of Discrimination Against Women. International law says women must also given equal rights. Many women are left homeless with children without maintenance. It creates social injustice and exploitation. My law, triple talaq is nothing but a tool of oppression against women. Equality before law cannot exist if one gender has absolute power over the other. Justice cannot allow a marriage to destroy in 3 seconds by saying talaq, talaq, talaq. India cannot be more backward than Pakistan or Bangladesh, where triple talaq is already done. The respondent may argue religious freedom under Article 25, but this freedom is not factual. Article 25 is subject to public order, morality and fundamental rights. The court in Shamimara versus State of Uttar Pradesh 2002 made it clear that talaq must have a reasonable cause and attempt a reconciliation. Therefore, talaq-e-biddah is neither essential nor Islamic constitution. My lord, our constitution makers give us Article 44 in DPSP, which stands for Direct Principle for Union Civil Code. In Sarna Mughal versus Union of India 1995, the court says the ended up for UCC to promote national integration and gender justice. India is bounded by international community like CEDAW. For this reason, my lord, I submit that instant triple talaq violates Article 14, 15 and 21 under Constitution is not protected and is contrary to the reason of 44. I rely on net of authority including Keshwanand Bharati, Sarla versus Shah Banu. May it please this honorable court, my client Saira Banu and many other women in India are suffering because of this practice of instant triple talaq. This practice takes away a woman's dignity, equality and security in these 3 words, talaq, 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 without giving her any chance to defend herself. Therefore, I humbly request this honorable court to declare the practice of instant triple talaq unconstitutional and unfair. This court should also guide towards the uniform civil code under Article 44, so that women of every religion can live with justice, dignity and equality. May justice be done. By doing so, this court will not only deliver justice to Saira Banu, but also a millions of women who destroy equality and respect. May justice be done. May we please the honorable court to give our kind submission. I am Advocate Awar, here on behalf of the opposite side. आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये केस सिर्फ एक पर्सनल प्रैक्टिस का नहीं बल्कि एक केस ऑफ लीगल और सेक्युलर प्रैक्टिस ऑफ इंडिया का केस है
इस्लाम एक दीन है जो बैलेंस और इंसाफ सिखाता है। तलाक का कॉन्सेप्ट इसी इंसाफ का बैलेंस का पार्ट है और मैं इसी को कोर्ट के सामने रखने आया हूँ। कमिश्नर सारा बाबू ने कहा कि केवल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वुमेन के राइट के खिलाफ है, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ट्रिपल तलाक यानी तलाक की हिद्दत धरती के हिसाब से सही है, लेकिन लीगली वैलिड माना गया है और ये सेंचुरी से मुस्लिम के पर्सनल लॉ का हिस्सा है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलना कुरान के मुताबिक होगा और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। केस के 3 बड़े सवाल आते हैं। पहला सवाल होता है कि क्या पर्सनल लॉ में जुडिशरी डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती है। दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है क्या ट्रिपल तलाक आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 के अंडर रिलीजियस फ्रीडम का हिस्सा है। तीसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या यूनियन ऑफ इंडिया को इसके लिए ब्लेम किया जा सकता है और कुरान क्या कहता है। मैं बताना चाहूँगा कुरान के दायरे से। कुरान में तलाक का रूल दिया गया है सूरह अल-बकरा 229, 232 और सूरह अत-तलाक 65 हुआ। अत-तलाक मर्रतन फमिसकु बिमारूफ और तस्रीका बिअहसन। एक हदीस अबू दाऊद में लिखा भी है तलाक हलाल है लेकिन अल्लाह को पसंद है। मतलब तलाक का ऑप्शन इस्लाम में है पर सिर्फ लास्ट रिजॉर्ट है। माय लॉर्ड, इस्लाम फैमिली को जोड़ने का हमेशा सलाह देता है, लेकिन नेशनल एजुकेशन और पेरेंट्स सबसे पहले स्टेप है। लेकिन अगर सब फेल हो जाए तभी तलाक एक ऑप्शन बनता है और हल्की में ट्रिपल तलाक सही है पर इफेक्टिव माना गया है। माय लॉर्ड, वुमेन के राइट इस्लाम में क्या है मैं ये भी बताना चाहूँगा। पेटिशनर का कहना है कि सिर्फ हस्बैंड के पास पावर है। पेटिशनर का कहना है सिर्फ हस्बैंड के पास पावर है, लेकिन यह पूरा नहीं है। इस्लाम वुमेन के भी राइट देता है डिवोर्स के लिए। वुमेन के पास इस्लाम में पहला प्रावधान है कि वाइफ अपनी तरफ से तलाक ले सकती है अगर वो अपना घर वापस कर दे। कुरान के अकॉर्डिंग सफा नंबर 2 में इसका जिक्र भी है। या अय्युहन नबी इज़ा तलक़्तुमुन निसा फतलक़्तुहुन्ना यतरुना व अहसनुल इद्दा। मतलब अगर वाइफ अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है तो उसके पास खुला लेने का राइट है। पॉइंट नंबर 2, माय लॉर्ड, वाइफ कोर्ट या काजी के सामने अपना केस रख सकती है अगर हस्बैंड जुल्म करे, नेगेटिव करे या अनफेयर हो तो काजी आपके थ्रू तलाक रिजॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिर्फ हस्बैंड की पावर तो नहीं है, औरतों को भी पावर दिया गया है, अपने हक से आज़ादी मिलेगा। माय लॉर्ड, इस्लाम ने दोनों को बैलेंस दिया है। अगर हस्बैंड के पास तलाक का पावर है तो वाइफ के पास भी खुला और पास का हक है। ये कहना कि सिर्फ हस्बैंड पावरफुल है इस्लाम की पूरी पिक्चर को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। इस्लाम में सिर्फ हस्बैंड को जुल्म करने का लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन अगर वाइफ कुछ भी हस्बैंड की बात ना माने या मैटर ऑब्लिगेशन तोड़ दे तो हस्बैंड के पास भी लास्ट रिजॉर्ट है तलाक अगर वाइफ का ले सकती है। जब वो हस्बैंड से अनहैप्पी हो तो हस्बैंड के पास भी हक है तलाक लेने का जब वो औरत की बात ना माने। ये एक नेचुरल बैलेंस है ना कि इनजस्टिस। माय लॉर्ड, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 25-26 रिलीजियस फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है। हाईकोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ के स्कोप में आर्टिकल 30 के अंदर नहीं आता। शमी भारत के अंदर तो ऐसी कोर्ट ने एडवर्टाइजमेंट तलाक को रिजेक्ट किया और प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया। मतलब माय लॉर्ड, कोर्ट ने हमेशा कहा है रिफॉर्म पार्लियामेंट करेगा, कोर्ट नहीं। माय लॉर्ड, अगर रिफॉर्म की जरूरत है तो पार्लियामेंट करे, जुडिशरी का रोल लिमिटेड है। अगर आज कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देती है तो सेक्युलरिज्म और प्रोविजन दोनों खतरे में आ जाएंगे और यूनियन ऑफ इंडिया को ब्लेम करना सर वुमेन्स के लिए सेम बैलेंस आया है कि खुला और पास का खुला और पास में आपने लीक किया तो मौलाना का पावर दोनों को लीक हो गया तो हाँ काजी साहब का पावर काजी साहब अगर इससे पार्ट हो तो पार्टी को क्या करेंगे। काजी कोई संवैधानिक पोस्ट है क्या काजी संवैधानिक पोस्ट क्या पंडित जी संवैधानिक पोस्ट है बताइए मतलब आप क्या कोई
कोई हिंदू धर्म में कोई ब्राह्मण संविधानिक पोस्टर आपको पढ़ने नहीं सकते, उस प्रकार से आप यहाँ कार्य संविधानिक पोस्टर स्क्रिप्चुरल पोस्टर है। दूसरी बात आपने कहा खतरे क्यों आए, किस तरीके से ये तो आप ही के अधिकार को ही चैलेंज कर रही है, तलाक 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 खतरे में कैसे आए, किस प्रकार का उसको नोटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारा सिस्टम का फॉलो करता है, हमारे ट्रेडिशनल है। आज अगर कोई गाय करता है तो हमारे ट्रेडिशनल पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हर धर्म का अपना अपना एक प्रभाव है, सबके अपने अपने रूल है। हमारा लॉ भी जैसा कि आपके काउंसिल ने बताया कि किस किस देश में बैन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, सर पाकिस्तान पाकिस्तान तो आपसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, बांग्लादेश भी इस्लामिक मुल्क है। जब वहाँ पर इस्लाम मतलब आपके खतरे नहीं आ रहा तो यहाँ कैसे खतरे में आए, आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए। पाकिस्तान बांग्लादेश में बैन है, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते? सर बैन लीगल बैन है, तो पाकिस्तान बांग्लादेश या तुर्की आप तो यहाँ क्यों नहीं, क्यों क्यों आप कहते हैं कि खतरे में आ जाएगा हमारा? इसमें इस ट्रेडिशनल को सबसे ज़्यादा इंडिया में ट्रेडिशनल इंडिया में नहीं किया गया, उन्होंने कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड तुर्की टोटली इस्लामिक देश है, तो यहाँ पे तलाक बैन कर दिया गया है। तो इंडिया तो मुस्लिम देश नहीं